Hello class, in last lecture we started with the hyperbolic function. Okay, in hyperbolic function we have taken some formulas, right? In terms of sine and cos, what is the value of your sine hyperbolic x, value of cos hyperbolic x in terms of what? Exponential function. After that we have taken some standard formulas of some addition. What is this? Cos hyperbolic square x minus sine hyperbolic square x is equals to what? 1. And same type of formula. After that how we reduced our sum to product, हमने वो फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला थे वो इन टर्म्स ऑफ आपके इसमें भी लिए हैं. Now we will take here another example, here another formula, how we convert here product in terms of sum. So first sine hyperbolic x into cos hyperbolic y is equals to 1 half sine hyperbolic x plus y plus sine hyperbolic x minus y. Okay, now second one, cos hyperbolic x into sine hyperbolic y is equal to 1 half sine hyperbolic x plus y minus sine hyperbolic x minus y. Third one, cos hyperbolic x cos hyperbolic y is equal to 1 half cos hyperbolic x plus y plus cos hyperbolic x minus y. Fourth one, sin x into sin y, sin hyperbolic x into sin hyperbolic y is equals to 1 half cos hyperbolic x plus y minus cos hyperbolic x minus y. Okay, so these are the some formulas. Now double angle formula. First one, sine hyperbolic square x is equal to 2 times sine hyperbolic x into cos hyperbolic x is equals to 2 times tan hyperbolic x divided by 1 minus tan hyperbolic square x. Second formula, tan hyperbolic square x is equal to cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x is equals to 1 plus tan hyperbolic square x divided by 1 minus tan hyperbolic square x. Third one, tan hyperbolic square x is equal to 2 tan hyperbolic x divided by 1 plus tan hyperbolic square x. Fourth one, cos hyperbolic square x is equal to 1 plus cos hyperbolic 2x
divided by 2. Fifth one, sin hyperbolic square x is equal to cos hyperbolic 2x minus 2 minus 1 डिवाइडेड बाय। ओके, तो ये सभी फॉर्मूला है सेम, आपने जो भी हमने इसके फॉर्मूलाज लिए हैं ना, साइन और कॉस के जैसे फॉर्मूला है ना, वही कि हमने ये पता है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं 2x रहेगा, obviously there is one mistake, that sin hyperbolic 2x is equals to 2 times sin hyperbolic x into cos hyperbolic x, which is equals to here 2 times tan hyperbolic x upon 1 minus tan hyperbolic x. So we have to write one more formula. ये हम पहले देख लेते हैं, ऊपर ही लिख देते हूँ। ये यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला जो है ना, मैं वो ये ज़रा रफ करके यहाँ पे 6th वन फार्मूला जो है वो लिख देती हूँ डबल एंगल का, कि cos hyperbolic 2x is equals to cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x, which is equals to 1 plus tan hyperbolic square x divided by 1 minus tan hyperbolic square x. If you remember, आपका ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसे आप सिंपल वे में कैसे याद रख सकते हो, s इंटू सी इज इक्वल्स टू 1/2 s प्लस एस, देन यहाँ पे सेकंड वन c इंटू एस इज इक्वल्स टू 1/2 s माइनस एस, देन यहाँ पे c इंटू सी इज इक्वल्स टू 1/2 c प्लस सी, एंड हियर s into s is equals to 1/2 s c minus c. तो ये आप शॉर्टकट में इसे याद रख सकते हैं, ओके, कि प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम आपका सम टू प्रोडक्ट का भी लिया था, तो सम टू प्रोडक्ट में क्या हो जाता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो कंपैरिजन से आप इजीली याद रख सकेंगे। यहाँ पे आपका s प्लस एस क्या हो जाता है, देखो s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स s इंटू सी, इसी को रिवर्स करो, देन यहाँ पे आपका c इंटू एस यहाँ पे s माइनस एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c इंटू एस, देन हियर c प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c टू सी, c माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स s इंटू एस। इसी का रिवर्स है, चेंज क्या है, यहाँ पे आपका जो थीटा x रहता है वो आ जाता है आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, और जब हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे x प्लस वाई आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों में फ़र्क है खाली, कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन में जाते हैं थीटा रहता है x प्लस वाई, और जब हम यहाँ पे एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं थीटा चेंज हो जाता है, थीटा क्या हो जाता है आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपने ये देखो s इंटू सी इज इक्वल्स टू 1/2 s प्लस एस, सेम यही है आपका, कि इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टू समेशन, समेशन टू प्रोडक्ट। चेंजेस किस में है, खाली आपके थीटा में है, ओके। बाकी जो इसका फॉर्मूला है आपके डबल एंगल के, तो डबल एंगल में क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 2x, सेम फॉर्मूला आपका कॉस में भी है, कि कॉस x इज इक्वल्स टू हियर कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आ जाता है,
वहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है, ये इसमें डिफरेंस है कि कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाता है, मतलब वही आपका हाइपरबोलिक में। और यहाँ पे आपका कॉस हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू सेम एज योर टैन में क्या आ जाती है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपके नॉर्मल कॉस में भी क्या आ जाती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, सेम आपकी नॉर्मल। ये फॉर्मूला खाली क्या है, चेंज है। यहाँ पे जब भी हम कॉस 2x की वैल्यू लेते हैं ना नॉर्मल इसमें, तो नॉर्मल इसमें कॉस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू आता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये उसकी वैल्यू है। पर हाइपरबोलिक में ये वैल्यू चेंज हो जाती है, बस उतना आपको याद रखना है। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सेम हाइपरबोलिक में भी आ जाता है। हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 टाइम टैन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस, सेम आपका साइन एक्स में भी आ जाता है। टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस, ओके ये मैंने गलती से यहाँ पे टैन लिख दिया है, दिस इज नथिंग बट योर cos hyperbolic 2x, this is your cos hyperbolic 2x. So tan hyperbolic square x is equal to 2 टाइम tan hyperbolic x। यहाँ पे देखो साइन और कॉस में ये tan में क्या डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan hyperbolic square x आ जाता है, then cos hyperbolic square x is equal to 1 प्लस cos hyperbolic 2x, sin hyperbolic square x is equal to cos हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बाकी के सभी फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूला चेंज कहाँ पे हुआ है, ये आपका वाला फॉर्मूला चेंज है, दिस वन इज चेंज, ये वाला थोड़ा सा हाइपरबोलिक में चेंज है, बाकी के सभी फॉर्मूलाज आपके सेम ही आते थे। फॉर्मूला बाय हार्ट करोगे तभी आप क्या कर सकोगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकोगे। ओके ओके, सो हम उसमें और नेक्स्ट ये देखते हैं। अभी अब तक तो हमने सब कुछ फॉर्मूला ही ले लिया है, अभी हम थोड़े उसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। बिफोर दैट यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं। ये सारे फॉर्मूला जो है आपके हाइपरबोलिक के, कि आपको अगर नॉर्मल फार्मूला बाय हार्ट है तो वेरी गुड, अदरवाइज यू हैव टू बाय हार्ट ऑल द फार्मूलाज। ओके so differentiation and integration फर्स्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव से अलग आ रहा है ना हाइपरबोलिक, उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मली माइनस साइन आता है, पर हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, वो प्लस ही रहता है।
then derivative of tan hyperbolic x is equal to sec hyperbolic square x derivative of sec hyperbolic x is equals to minus sec hyperbolic x इंटू tan hyperbolic x. यहाँ पे भी चेंजेस है, ये माइनस साइन इसमें ऐड हो गया है. नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक x. ये नॉर्मल ही है जैसे पहले हुआ. एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x. चेंजेस कहाँ कहाँ पे है कि आपका कॉस एंड साइन कॉस एंड सेक दोनों के फॉर्मूला में थोड़े चेंजेस आए हैं. तो यहाँ पे क्या है कि क्या चेंजेस है कि यहाँ पे जो प्लस साइन रहता है वो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया है, ये माइनस साइन इसमें ऐड हो गया है. ये दोनों ही क्या है यहाँ पे चेंजेस है. यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे नीचे लिखती हूँ कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे माइनस साइन नहीं है और यहाँ पे माइनस साइन ऐड हो गया है. ओके, तो ये दो क्या है इसमें चेंजेस है. ओके, सो these all are the formulas for derivative. और एक उन्होंने हिंट के लिए दिया है, we can find out डेरिवेटिव बाय, अगर मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगी, आई विल टेक हियर डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2. इफ यू सॉल्व दिस इज नथिंग बट 1/2 e रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस e raised to minus x, which is nothing but the cos hyperbolic x. In same way we can find out all the formulas. ओके, यही फॉर्मूला, ये वे से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ऑल द डेरिवेटिव. मतलब हमें क्या करना है, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी हाइपरबोलिक फंक्शन, यू जस्ट राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल का आप डेरिवेटिव ले लो एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द हियर साइन एंड कॉस. तो ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वे है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. ओके, ये बहुत इजी वे है. नेक्स्ट हम देखते हैं अभी हम इंटीग्रेशन का एक बार देखते हैं. आई जस्ट रफ इट. Now derivative of inverse hyperbolic function. So first is derivative of here x is equals to sine hyperbolic inverse x.
is equals to 1 upon under root of x square plus 1. Okay. Second one, derivative of cos hyperbolic inverse x is equals to 1 upon under root of x square minus 1. Third one, derivative of tan hyperbolic inverse x is equal to 1 upon 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पे चेंजेस है. ओके. एंड नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन का. फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ sin hyperbolic x dx is equals to cos hyperbolic x. Second one, integration of cos hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x. Third one, integration of sec hyperbolic square x is equal to tan hyperbolic x. And fourth one, integration of cosec hyperbolic square x is equal to minus cot hyperbolic x. ठीक, ये है आपके कुछ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूलाज एंड कुछ है आपके इसकी. यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए रिमेनिंग फॉर्मूला जस्ट tan इनवर्स को आप कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स को सेक में एंड साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए. यू विल फाइंड आउट द रिमेनिंग वन. यहाँ पे भी ये जो है ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे जिससे कि आप इजीली ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो ये सारे हैं आपके डेरिवेटिव के डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं. कुछ फॉर्मूले हैं पीरियड ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन, वो हम देख लेते हैं. आई जस्ट रफ इट. Sin hyperbolic x and cos hyperbolic x are periodic function sin x is equals to sin 2 pi plus x. Second one, cos x is equal to cos of 2 pi plus x. Third one, sin ix. अभी देखो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है इज इक्वल्स टू साइन 2 pi plus ix. Fourth one, cos ix is equal to cos 2 pi plus ix. Fifth one, I into sin hyperbolic x is equal to sin I into x minus 2 pi I. Okay.
Sixth one, cos hyperbolic x is equals to cos I into x minus 2 pi I. Seventh one, I sin hyperbolic x is equals to I sin hyperbolic x minus 2 pi I. Then eighth one, cos hyperbolic x is equals to cos hyperbolic x minus 2 pi I. And ninth one, sin hyperbolic x is equals to sin hyperbolic x minus 2 pi. ओके, ये सारे फॉर्मूले आपके किसके हैं, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन के हैं पीरियोडिक टाइम के लिए। तो पीरियोडिक के लिए आपके कौन से फॉर्मूले आ जाते हैं, ओके, कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई प्लस एक्स। देन सभी फॉर्मूले देखो आपके 2 पाई में आ जाते हैं। नॉर्मल साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन हियर 2 पाई प्लस एक्स। वही हाइपरबोलिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 2 पाई आ जाता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है आपके, कि नॉर्मल जो साइन रहता है ना, इसकी वैल्यू रहती है आपकी 2 पाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि एक्स माइनस 2 पाई आई। यहाँ पे देखो कॉस में क्या हो जाता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। वहीं पे हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है आपका, हाइपरबोलिक में आपका एक्स माइनस 2 पाई आई आ जाता है। एंगल यहाँ पे देखो दोनों भी जगह पे चेंज है। आफ्टर दैट साइन आई एक्स एंड कॉस आई एक्स, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, नॉर्मल साइन आई एक्स रहेगा तो 2 पाई प्लस आई एक्स हो जाएगा, कॉस आई एक्स रहेगा तो 2 पाई प्लस आई एक्स हो जाएगा। आई साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो आई को बाहर लो और हाइपरबोलिक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स माइनस 2 पाई। यहाँ पे भी आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस आई रखो और ये आपका जो है ना एक्स माइनस 2 पाई आई, उसकी वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दो। इसी फॉर्मूला को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो भी उन्होंने दिया गया है। देन दिस ऑल नथिंग बट द हियर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई फॉर साइन एंड कॉस फंक्शन। नाउ देयर इज वन मोर दैट फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन क्या हो जाता है आपका, मॉड ऑफ tan हाइपरबोलिक z इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 रहता है। tan हाइपरबोलिक z क्या हो जाता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू आपका 1 रहता है। ओके, ये सभी क्या है आपके हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिया हमने, फिर नॉर्मल आपके फॉर्मूले ले लिए। अभी एक बार हम ग्राफ एक बार उसका देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं रफ कर देती हूँ, सभी फॉर्मूला अच्छे से एक पेज पे लिख लो और उसे बाय हार्ट करो, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ना आपका हाफ पोर्शन पूरा उन्होंने हाइपरबोलिक ही दिया है। सो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हाइपरबोलिक के सभी फॉर्मूले अच्छे से बाय हार्ट ही करने हैं। नाउ ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ग्राफ लिख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर cos hyperbolic x।
दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ओके, सो ये क्या है आपका ग्राफ ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया। नाउ अभी सेकंड वन, आपका ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे आ जाएगा? क्यों ऐसे आ जाता है कि आपका क्या हो रहा है, साइन का जो माइनस साइन है ना, आप देखोगे तो ये सेम एज द एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाती है, और उसका ग्राफ भी आपका ऐसे साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाता है प्लस माइनस में, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ आपका ऐसे आ जाता है। ओके, सो दिस इज योर साइन हाइपरबोलिक कर्व, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, ग्राफ खाली याद रखो कि हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो थैंक यू।